الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు మరియు ఈ ఆధ్యాత్మిక సభకు విచ్చేసినటువంటి హిందూ, ముస్లిం మరియు క్రైస్తవ సోదరులందరికీ నేను ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్. అనంత కరుణామయుడు, అపార కృపాశీలుడు, సకల చరాచర సృష్టికి మూలాధారం అయిన ఆయన సర్వోత్తముడు, సర్వోన్నతుడు, సర్వాధికుడు, సంరక్షకుడు, సజీవుడు, నిత్యుడు, అనంతుడు. కొనుకు రానివాడు, నిద్రపోనివాడు, మానవ బలహీనతలకు అతీతుడు, జీవిత సహచరి, జీవిత భాగస్వామి, కొడుకులు, కుమార్తెలు అనే సంసారిక సుఖ దుఃఖాలకు అతీతుడు. మానవ బలహీనతలకు అతీతుడు, పరిశుద్ధుడు, పరమ పవిత్రుడు. అతల, పితల, సుతల, మహాతల, రసాతల, తలాతల, పాతాల లోకాలను సృష్టించిన ఆ సృష్టికర్త జానెడు గర్భాన్ని జగమంత చేసి, జానెడు గర్భాన్ని జగమంత చేసి అండాన్ని పిండంగా మార్చి బ్రహ్మాండమైన సృష్టితాలను సృష్టిస్తున్న ఆ సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ప్రారంభిస్తున్నాను. మహాశయులారా, ఇందాక మా సమస్త సత్య శాంతి సందేశ కేంద్రం మహబూబ్ నగర్ నుంచి రావడమైనది. మా సమస్త ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ముక్కలైన మానవ సమాజాన్ని ధార్మిక గ్రంథాలైన
వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత, బైబిల్ మరియు చిట్ట చివరి దైవ గ్రంథమైన ఖురాన్ల తులనాత్మక అధ్యయనం చేసి మానవులంతా ఒకే జంట సంతానమని, పరస్పరం రక్త సంబంధికులు అనే సత్యాన్ని ప్రేమానురాగాలతో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొల్పే దిశలో ప్రయత్నాలు చేయడం. ఈ మహోన్నత సృష్టిలో, ఈ మహోన్నత విశ్వములో ఎన్నో లక్షల జీవరాశులున్నాయి. ఆ జీవరాశుల అన్నింటిలో మానవుడు ఉత్తమమైన సృష్టి, అష్రఫుల్ మఖ్లుకాత్ అని అంటారు. ఈ మానవునికి ప్రత్యేక స్థానం ఈ సృష్టిలో ఇవ్వబడింది. సమస్త సృష్టి మొత్తం మానవుని సేవ కొరకు పుట్టించాడు దేవుడు. మానవుడు మాత్రం ఆ అల్లాహ్ తన కొరకు పుట్టించాడు. ना तू जमी के लिए ना आसमां के लिए, ना तू जमी के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए. यहां पे मैं समझ रहा हूं गैर मुस्लिमीन बहुत कम दिख रहे हैं, और मेरी तेलुगु शायद आप लोगों के समझ में आ रही नहीं आ रही नहीं मालूम. मैं थोड़ा बहुत उर्दू में बोलते हुए आगे बढ़ूंगा. अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का मकसद ये बताया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून. हमने इंसानों को और जिन्नात को महज हमारी इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए. बाज़ उलमा ने लियाबुदून के माने लियारिफून भी करे. हमने इंसानों को और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो मुझे पहचाने. आदमी किसी की इज्जत एहतराम उस वक्त करता है जबकि वो उसको पहचाने. अगर नहीं पहचाना तो इज्जत नहीं करता, एहतराम नहीं करता. एक धोबी घाट के पास कपड़े धो रहा था, वहाँ पे उसको एक हीरा मिला, तो हीरे को पहचाना नहीं, इस बात से उसको रस्सी बांध के, तागा बांध के गधे के गले में बांध दिया, इस बात से कि नहीं पहचाना वो हीरा है. अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवा व तमन्ना अल्लाह. दानिशमंद, समझदार, होशियार इंसान कौन है? मन दाना नफ्सहु, जो अपने आप को पहचाने. मैं इस दुनिया के अंदर मेरे आने का मकसद क्या है, मैं क्यों आया, मैं दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर मेरी पोजीशन क्या है, मुझे किस पोजीशन में जिंदगी गुजारना है. पूरी किताबों का निचोड़ है ये. हम आए किस बात से दुनिया के अंदर, मकसद क्या है हमारा आने का? हमारा मकसद ये है कि हमारे जो खुदा है, हमारा जो हमारा खुदा है, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा जी प्रभु है, जो हमारा रब है, जो हमारा पालनहार है, जो हमें पैदा किया, उसको पहचाने. बुजुर्गों ने एक अच्छी मिसाल दी है. गांव छोटे गांव का किसान जो होता, किसान जो खेती बाड़ी करने वाला होता है,
वो यमारवो से, तहसील से मिलना था उसको, तहसीलदार से। वो गोंगड़ी उंगड़ी डाल लेके, बड़ा चुट्टा रहता है उसमें, वो बीड़ी पीते, वो उसका एक बड़ा चुट्टा रहता है, और चुट्टा लेके पीते हुए बस में बैठा हुआ, तो कंधे पे गोंगड़ी है, हाथ में चुट्टा है, बाजू में कोई ऑफिसर किस्म का आदमी बैठा हुआ है। वो ऑफिसर किस्म का आदमी बोला, भाई ये चुट्टा क्या पी रहा, ये धुआं क्या छोड़ रहा, नीचे जाके चुट्टा पी ले, बस में क्यों पी रहा। तो वो आदमी बोला उससे तेलुगु में, ये बस तेरी नहीं, तेरी बाप की नहीं। लड़ रहा उससे, बहस कर रहा, तू भी टिकट लिया, मैं भी टिकट लियूं, तू अगर चाहे तो दूसरी बस में आ जा, मुझे क्यों बोल रहा कि चुट्टा नीचे जाके पी ले। झगड़ा कर रहा उससे। जब मंडल को उतरा, मंडल हेडक्वार्टर में उतर के मंडल ऑफिस गया, एमआरओ से मिलना था उसको, एमआरओ से काम था उसका, जो तहसील, जिसको तहसीलदार भी बोलते हैं। जब वो ऑफिस में अंदर गया, तहसील ऑफिस में, तो वो तहसीलदार जो था, वो ऑफिसर जो था, वही था जो बाजू में बैठा हुआ था बस में, जिससे बहस कर रहा था, जिससे लड़ रहा था। देखते हालत बदल गई उसकी। अब बोल रहा, दंडम दोरा, कालमुक्ता दोरा, तप्पंज दोरा बोल रहा, माफ करना साहब, तुम्हारा पाँव पड़ता हूं साहब, आपको नहीं पहचाना मैं। अब पहचाना तो हालत बदल गई, नहीं पहचाना तो बहस कर रहा था, लड़ रहा था, झगड़ रहा था। पहचाना तो हालत बदल गई, तप्पंज दोरा, कालमुक्ता दोरा बोल रहा। हमारा हाल भी ऐसा ही है। अल्लाह को जैसा पहचानना चाहिए था वैसा नहीं पहचाने हम लोग। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह ताला शिकायत कर रहे हैं कि इंसानों ने जैसा अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी वैसी कदर नहीं की, जैसा पहचानना चाहिए था वैसा नहीं पहचाना। हमारी मनसबी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ के गैर मुस्लिम भाई जो हैं उन तक इस्लाम का, अमन का पैगाम उन तक पहुंचाएं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मनसबी जिम्मेदारी है। अगर नहीं पहुंचाएं हम इन तक, हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, आंख खोले तो घर में हमारे कुरान हदीस की बातें हो रही थे, अल्लाह का बातें हो रहे थे, कुरान की बातें हो रहे थे, नमाज की बातें हो रहे थे। नमाज पढ़ते देखे तो हम भी नमाज पढ़े, अल्लाह बोल के वो सुने हम तो हम भी अल्लाह बोले। एक रमेश है, वो गैर मुस्लिम घर में पैदा हुआ, हिंदू घर में पैदा हुआ, वहाँ पैदा होने में आँख खोला तो वहाँ पर शिरक हो रहा था, मूर्ति पूजा हो रही थी, वहाँ पर ना कुरान थी ना हदीस थी। तो वो वहाँ पल के बड़ा हुआ तो मूर्ति पूजा कर रहा। हम यहाँ पैदा होके बड़े हो गए तो हम अल्लाह की पूजा कर रहे। हमारा इसमें हमारा क्या इम्तियाज है? अगर वो कल शिकायत करा अल्लाह से, अल्लाह आप मुझे जो है हिंदू घर में पैदा किए थे, मैं वहाँ आँख खोला तो वहाँ शिर्क और कुफ्र का माहौल था, लोग मूर्ति, हमारे बाप दादा मूर्ति पूजा कर रहे थे तो हम भी मूर्ति पूजा करें। बाजू में अब्दुल्ला को आप मुसलमान घरों में पैदा किए और वहाँ वो बड़ा हुआ तो जो उसके घर में कुरान और हदीस थी, खुदा की बात थी, तो वो अल्लाह की पूजा किया, हम मूर्ति की पूजा करें। उसका क्या इम्तियाज है? उसे जन्नत क्यों और मुझे जहन्नम क्यों? क्या जवाब देंगे हम उसका? अल्लाह ताला हमें एक जिम्मेदारी दिए है, इस्लाम पर खुद अमल करना है, दूसरों को इस्लाम की दावत देना है। इस्लाम के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके अंदर है, उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। वरना कल अल्लाह ताला के दरबार में हमारे खिलाफ वह मुकदमा दायर करेगा कि मुझे नहीं मालूम था तौहीद क्या चीज़ थी, मुझे नहीं मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्रवक्ता थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के मैसेंजर थे, मुझे नहीं मालूम था। और ये मेरे बाजू में अब्दुल्ला था, अब्दुर्रहमान था, वो मुझे कभी बोला नहीं। वो किसी पर जुल्म नहीं करने वाला खुदा, वमन यज़लिम मिस्काल ज़र्रा, किसी पर जरा बराबर जुल्म नहीं करेगा, वो कोई ना इंसाफी नहीं करेगा। वो कल वो क्या फैसला करेगा अल्लाह ताला?
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम तुम्हें तमाम इंसानों के लिए तुम्हें बर्पा किए हैं, हम तुम्हें पैदा किए इस बात से कि तमाम इंसानों तक तुम अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पूरे इंसान के लिए, पूरे इंसानों के लिए, पूरे मानवता के लिए उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना, उन तक जो है जी दीन का पैगाम, अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये अदा नहीं करे तो कम से कम हमारी जिम्मेदारी, कम से कम जो हमारे घर को दूध डालने वहाँ से आता है, जो हमारे घर में अखबार डालने वहाँ से गैर मुस्लिम कोई अगर आता है, किसके पास जाकर हम हजामत कराते हैं, किसी के पास जाकर जो है हम खरीदते हैं, किराना का सौदा लाते हैं, तरकारी लाते हैं, अगर ये गैर मुस्लिम है तो कम से कम इन तक तो भी बात पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं पहुंचाएंगे तो हम खुसरवार होंगे। हमारी ड्यूटी है ये। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ नबी कहो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मैं जीता हूं तो अल्लाह के दीन के लिए जीता हूं, मरता भी हूं तो अल्लाह के दीन के लिए मरता हूं। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए नमाजी। हम जी रहे हैं दुकान के लिए नहीं, हम जी रहे हैं बीवी के लिए नहीं, हम जी रहे हैं बच्चों के लिए नहीं, हम जी रहे हैं कारोबार के लिए नहीं, हम जी रहे हैं दुनिया के लिए नहीं। दुनिया तो झक मार के हमारे पीछे आएगी। अल्लाह ने जितना दुनिया हमारे लिए लिखा है वो झक मार के वो दुनिया हमारे पीछे आएगी। मगर हमारा मकसद, जिंदगी का मकसद हमारा दीन की सरफराजी है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बात करना, हमारे मामलात जी, हमारा ओढ़ना बिछोना दीन बन जाए। किसी से बात कर रहे हैं तो उसको लिए हम दीन का पैगाम पहुंचाएं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम ये कर रहे हैं। अभी पिछले मुक़र्रिरीन ने अल्लाह के नबी काली कमली वाले ताजेदार मदीना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें इस दीन को पहुंचाने के लिए उठाई। मैं दो बातें बता के बात को ख़त्म कर दूंगा। एक, हमारे अखलाक, वो अखलाक होना जो नबी के अखलाक थे। हमारे महल्ले में, हमारे घर में, हमारे महल्ले में, हमारे बस्ती में हमारे वो अखलाक, हमारे नमाज हम काम पढ़ दे, मस्जिद में पढ़ते, बाहर गैर मुस्लिम को हमारी नमाज दिखती नहीं, नमाज हम मस्जिद में पढ़ते, रोज़ा पेट में रहता, किसी को मालूम नहीं होता कि रोज़े से। हमारी ज़कात एक मुसलमान को देते, हमारा हज काबतुल्लाह में है। लोग ना हमारी नमाज को देख रहे हैं, ना हमारे रोजे को देख रहे हैं, ना हमारी ज़कात को देख रहे हैं, ना हमारे हज को देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं हमारे मामलात, हमारे अखलाक। गैर मुस्लिम देख रहे हैं हमारे अखलाक, हमारे मामलात। हमारे अखलाक को बद अखलाकी के अगर पेश कर रहे हैं तो समझते इस्लाम ऐसा है। मैं एक वाक़या आपको सुनाऊंगा। एक वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मशहूर वाक़या है। आप मक्के मुकर्रमा में, मक्के मुकर्रमा से एक बुढ़िया जो है अपना घर का पूरा सामान एक पोटली बांध के जो है वो रोड के रास्ते में लेके ठहरी थी। सर पे उठाने के बाद से बोझ बड़ा था, ज़्यादा वजन था, कोई सर पे उठा के नहीं रख रहा था। लोग जा रहे थे रास्ते से, बोल रही थी कि बेटा ये सर पे उठा के रखो मेरे की पोटली। कोई सुन के अनसुनी कर रहा था। उधर से मेरे और आपके आका अल्लाह के सच्चे नबी काली कमली वाले ताजीदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। वो खातून बोल रही थी कि बेटे ये सर पे उठा के रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करीब गए, बोली कि क्या बात है? तो बेटा ये पोटली मेरे सर पे उठा के रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पोटली को उठा के
उसके सर पे रखने के बजाय अपने सर पे रख ले के बोले कि बड़ी भी चलो कहाँ चलना है, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह, कुर्बान जाइए, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रास्ते में पूछे आप कि आप मक्के के रहने वाली हैं या वो बस्ती की रहने वाली हैं जिस बस्ती को जा रही हैं आप? तो बुढ़िया बोली, बेटे मैं मक्के की रहने वाली हूँ, मक्का इस वास्ते छोड़ रही हूँ या कोई मोहम्मद है, मोहम्मद का नाम सुनी थी मगर मोहम्मद को देखी नहीं थी वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कह रहे थे कि यहाँ कोई मोहम्मद है, यहाँ मोहम्मद हमारे 360 बुत जो आबा व अजदाद से पूछते हुए आ रहे थे उनको पूजने से मना करता है, एक खुदा की इबादत करने की दावत देता है, उससे बचने के लिए मैं मक्का छोड़ रही हूँ, बेटा तू भी बच के रहना उससे मोहम्मद। अल्लाह, रास्ता भर आपको गालियां दे रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर उसका बोझ था, उसके गालियां सुन रहे थे, उड़के उसके कड़वे कसेरे बातें सुन रहे थे, मगर आपके अखलाक के पाए इस्तेकामत पे कोई जंबिश नहीं आई। जिस बस्ती को जाना था उस बस्ती पर पहुंचे और सामान रखा तो बुढ़िया बोली, बेटे वो कौन मोहम्मद है जो पैगंबरी का दावा कर रहा है? तू जैसा आदमी पैगंबरी का दावा करना चाहिए, तू जैसा आदमी पैगंबर होना चाहिए। बेटे कितने अच्छे अखलाक हैं तेरे, क्या नाम है बेटा तेरा? अल्लाह अकबर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अब तक जिस मोहम्मद को तुम गालियां देती हुए आई थी वो मोहम्मद मैं ही हूं। तो बुढ़िया बोली, अगर तू मोहम्मद है तो तू पक्का अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का पैगंबर है, तेरा दीन पक्का दीन है, ला तेरा हाथ क्या मैं कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ आपकी, आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही अखलाक से भरी हुई थी। हमारे अखलाक मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक वाक़या, ताज़ा वाक़या सुना रहा हूँ मैं आपको, ये 1400 साल पुराने का वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब आज के ताज़ा वाक़या। बस जा रही है, लोग बैठे हुए हैं बस में, खचाखच भरे हुए हैं। एक खातून जो ऑफिसर किस्म की थी वो खातून बस चढ़ी, आके बस में बैठी और बस चल रही है। कंडक्टर टिकट 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 बोल के आया तो उस खातून के पास आके बोला, टिकट अब तो ख़वातीन के लिए फ्री है, ये उस ज़माने के उससे उस पहले के है कि वो जब फ्री नहीं था और ख़वातीन के लिए। तो आके वो जो खातून थी ऑफिसर किस्म की, उसके पूछा कि टिकट, तो वो पर्स खोली टिकट लेने के लिए। पर्स खोलते ही हैरान हो गई कि पर्स में पैसे नहीं है। कभी होता है ऐसा, भूल जाता है आदमी। पर्स खोली तो पैसे नहीं है। 36 रुपये जाने के लिए बस का टिकट था, उसके बाद उसके अंदर सिर्फ 6 रुपये थे। अब ऑफिसर है, इज्जत का सवाल है। कंडक्टर्स कैसे रहते, पैसे नहीं रहे तो जो है 4 बातें करके उतार देते उसको। और कंडक्टर्स भी, उन्हें भी क्या करेंगे बेचारा, रोजाना कोई ना कोई पैसे लिए बगैर आता, हर एक को देते रहते, उनकी खजाना पूरा उनका खाली हो जाता। तो बोले कि भाई बस रोक दो, जो खातून को उतारना है। उस वक्त तक बस जो है शहर से बाहर निकल गई थी। अब कंडक्टर ड्राइवर को बोला कि भाई बस रोको, बस रोक दिया गया। और वो खातून को बोले उतरो जी उतरो बोल के झिड़की देते हुए उतारो। पसीना पसीना हो गई उन्हें, बेइज्जती की वजह से। ऑफिसर थी, सामने सीट पे एक साहब जो है कुर्ता पैजामा ऐनक टोपी लगा के अखबार पढ़ रहे थे। दाढ़ी थी, ऐनक थी, कुर्ता टोपी पैजामा पहन के जो है अखबार पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, क्यों रोक दिए बस? तो बोले कि वो खातून जो है वो पैसे लिए बगैर आ गई जी। वो ऐसे आते रहते लोग जो है पैसे लिए बगैर आते। बोले तो वो जो सामने बैठे हुए थे बोले साहब, उन्होंने बोले कितने पैसे? बोले 36 रुपये होना है और जाने के लिए 6 रुपये लेके आई और 30 रुपये होना है। तो वो मौलवी साहब क्या करे, जेब में से
₹50 के नोट निकाल के कंडक्टर को देते ही बोले कि खातून को टिकट दे दो। अब वो खातून बैठ गई। अब वो जो है खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब जहां उतरना था, वो खातून जहां उतरने का था वहां खातून उतरी और मुल्ला साहब भी वहीं उतरने का था। मुल्ला साहब उतरे, वो करीब आई मुल्ला साहब के, आके बोली कि साहब आप इंसान नहीं होते, साहब आप देवता, आप इंसान नहीं होते, देवता हैं आप। बस तमाम इंसान मेरे 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 मजहब के लोग भी बस में थे, कई हिंदू थे कई मुसलमान थे, किसी को तौफीक नहीं हुई ₹31 निकाल के देने की। आप कितने दयालु हैं, आप जो है ₹30 निकाल के दिए। साहब आप महात्मा हैं साहब। जरा नम हो तो ये जमीन बड़ी जरखेज़ साक़ी। थोड़ा सा मेहनत करे तो ये लोग जो है बड़े नरम हैं। वो मुल्ला साहब बोले, वो आके धन्यवाद अदा कर रही थी तो मुल्ला साहब बोले और ₹100 का नोट निकाल के दिए। निकाल के देते हुए बोले आपको जाते वक्त भी बस का किराया होना है ना, जब वापस जाते वक्त भी होना है। बोले कि नहीं साहब मैं ये फलां ऑफिस में काम करती हूँ, वह ऑफिस में जो है मैं अपने ऑफिस में जो है मेरे साथियों से ले लूँगी। तो एक जुमला बोले वो मुल्ला साहब, पहले तो बोले आपका धन्यवाद वैसा बोले, तो वो बोले कि धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई महात्मा नहीं होता, मैं फरिश्ता नहीं होता, मैं कोई देवता नहीं होता, मैं इंसान हूँ। एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान अगर मुसीबत में है तो इंसान उसके मुसीबत में काम आए, यही असल इंसानियत है। ये इंसानियत नहीं है तो वो इंसान नहीं होता वो। और ₹100 का नोट देते हुए बोले कि बेटे रख लो। तो वो बोली कि मैं आप हमारे ऑफिस में ले लेती हूँ। तो वो एक जुमला बोले, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बहन, मैं आपका भाई हूँ। आपका भाई होते हुए किसी और से क्यों लेते हो तुम, क्यों मांगते हो तुम? अब वो जुमले, वो अखलाक, वो औरत जब ऑफिस में पहुंची तो ये दाढ़ी, टोपी, ये कुर्ता, ये पैजामा उसके जहन में भरा हुआ था। उसका शौहर एक फिरका परस्त तंजीम का जिम्मेदार था जो मुसलमानों के खिलाफ जहर भरते रहते। वो तंजीम, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, वो तंजीम का जिम्मेदार था। वो उनके जहन में भरा हुआ था कि मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। मगर ये मुल्ला साहब का एक छोटे से ₹30 में जी ₹30 के अंदर उसकी दिल जीत लिए। किसी ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, ऑटो के पीछे कुछ जुमले लिखते हैं ऑटो वाले। एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, दिल फॉर सेल, दिल फॉर प्लाट फॉर सेल रहता ना, दिल फॉर सेल। मैं समझ रहा था ये आता बोल के, अभी 2-3 बातें मैं ख़त्म कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। दिल फॉर सेल, प्लाट फॉर सेल लिखते हैं ना, इन दिल बेचने वाले हैं, दिल फॉर सेल। कीमत क्या लिखे? दिल फॉर सेल, 2 मीठे बोल। दिल फॉर सेल, कीमत क्या है? 2 मीठे बोल। तो ये मुल्ला साहब जो है वो बहन से बोले कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये ₹100 रख लीजिए। तो ऑफिस में जाके वो मुल्ला साहब के गुण गा रही थी कि इस्लाम ऐसा नहीं है, ऐसा समझ रही थी मैं इस्लाम को। मुसलमान बोले तो ऐसा समझ रही थी, मुसलमान ऐसे नहीं होते, मुसलमान ऐसे नहीं होते। घर पहुंची, घर जाके शाम में घर जाके अपने शौहर जो फिरका परस्त तंजीम का जिम्मेदार था उसको बोली कि मुसलमानों के ताल्लुक से तुम्हारे अंदर गलत फहमियाँ है, मुसलमान ऐसे नहीं हो सकते, मुसलमान तो ऐसे होते हैं। आज पूरा बस का वाक़या सुनाया तो वो शौहर भी हैरान हो गया। उनके पास एक रस्म है, कोई आप पे कोई एहसान करा तो उसका एहसान का बदला चुकाना ज़रूरी है, नहीं चुका तो वज़न रहता है उसी उसको। वो चुकाना क्या है? घर को बुला के उसके थाली में जो है उसके पैर रख के, वो पैर को पानी डाल के, वो पानी सर पे डाल लिया तो वो वजन उतर जाता। तो शौहर को बोली कि ऐसा ऐसा, ऐसी दाढ़ी है, ऐसी टोपी है, वो जहाँ भी मिले तो घर को बुलाना है उनको।
एक मर्तबा ये लोग जब भी बाहर निकलते देखते थे, एक मर्तबा सुपरमार्केट में जा रहे थे तो वो सुपरमार्केट से उमर साहब बाहर निकल रहे थे, जो हाथ में एक सौदे की थैली थी, एक हाथ में जो है आशीर्वाद वो गेहूं का आटे की थैली थी, आ रही थी। तो वो औरत देख के बोली कि ये है वो महात्मा, ये है वो देवता। शौहर मियाँ बीवी घर के करीब में जाके बोले, साहब आपका बहुत 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 शुक्रिया है, धन्यवाद है आपका, आपने हमारी बीवी का ऐसे मुसीबत के वक्त में साथ दिया, आप दयालु हैं, हमारे घर आप तशरीफ़ लाएँ, आप ज़रूरी है आप हमारे घर को तशरीफ़ लाना, एक 10 मिनट के लिए आइए। तो मुल्क साहब बोले कि कहाँ है आपका घर? तो वो बोले कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पे है, 1.5-2 किलोमीटर पे है। वो बोले कि ये सुपरमार्केट के पीछे मेरा घर है, वहाँ पहले चलो, वहाँ खा लेंगे, इसके बाद मैं फैमिली के साथ आपके घर को आऊँगा। वो सौदा लेके उनकी वो 2 जोड़े की कार थी, वो कार में बैठे जा रहे थे तो रास्ते में एक कवेलू का मकान था छोटा, सामने वो आम के पत्ते बने हुए थे, मुग्गू डाला हुआ था, गैर मुस्लिम का घर था। वो गाड़ी को रोको, बोले अंदर गए, जाके आए, वो सौदा और वो गेहूं का आटा रख के आए अंदर। पूछे ये क्या है? तो वो बोले ये हमारी पड़ोसन है, बेवा है, इसको मैं हर महीना सौदा ला के देता हूँ। अखलाक की तलवार है ये। घर को फ़ोन किए कि मैं एक जोड़े को घर को लेके आ रहा हूँ, गैर मुस्लिम है, उनके लिए ऐसा ऐसा पकाना, और आपके कपड़ों के जोड़े में से कोई जोड़ा नया है तो वो पैक करके रखना, उसको देना है। घर गए, खाना खाए, पानी पिए, मीठे मीठे बोले, बातें हुई। बाद में जो है वो कपड़ों का तोहफा उस खातून के सामने पेश किए मौलवी साहब। तो खातून हैरान होकर बोली कि ये क्या है? तो बोले कि भाई मैं आपको बहन मानता हूँ, तुम मेरे को भाई मानते हो, आप पहली मर्तबा घर आए हैं, आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा है। तो वो दोनों बोले ये क्या अखलाक है साहब आपके? तो उस वक्त में वो मौलवी साहब बोले कि हमारे कुरान यही अखलाक सिखाता है, हमारे नबी यही अखलाक सिखाते हैं, हमारा दीन यही अखलाक सिखाता है, हमारा इस्लाम यही अखलाक सिखाता है। तो वो बोले कि इतने बेहतरीन दीन हम तक पहुंचाने में आप देर कर दिए, इतने बेहतरीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में आप बहुत देर कर दिए। उसी वक्त वो दोनों इस्लाम कबूल किए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो यहाँ हमारा वजूद इस्लाम की नुमाइंदगी करना है, इस्लाम की अखलाक पेश करना है। मैं इन्हीं चंद कलमा के साथ और यहाँ जो ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया और आपके सामने बात रखने का एक अवकाश दिया। मैं आखिर में तमाम लोगों का और आपका सबका शुक्रिया अदा करते अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सब के अक़ाइद, हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा कुरान और हदीस के रोशनी में हो, इसी में हमारी कामयाबी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।